السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم پڑھ رہے تھے نواسخات کے بارے میں۔ کن کے بارے میں؟ نواسخات۔ کیا مطلب نواسخات؟ نواسخات سے مراد وہ مختلف کلمات ہیں، وہ مختلف کلمات ہیں۔ جب ہم نے کلمات کا لفظ بولا تو یہ فعل پر بھی بولا گیا اور اسم پر بھی اور حرف پر بھی، کیونکہ یہ جو نواسخات ہیں ان میں سے بعض فعل ہیں، ان میں سے بعض کیا ہیں؟ فعل ہیں، اور بعض جو ہیں وہ حروف ہیں، بعض جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حروف ہیں، اور شاید کہ کوئی اسم بھی ہو۔ تو لہذا نواسخات سے مراد وہ کلمات ہیں، نواسخات سے مراد وہ کلمات ہیں جو کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر۔ جو کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر۔ اور یہ جو نواسخات ہیں یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر، مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر یہ مبتدا اور خبر کے عمل کو کیا کر دیتے ہیں؟ باطل کر دیتے ہیں۔ مبتدا اور خبر کے عمل کو کیا کر دیتے ہیں؟ اور مبتدا اور خبر کے اوپر یہ پھر اپنا عمل جو ہے وہ کرتے ہیں، اپنا عمل جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ نواسخات میں ہم نے پہلی قسم پڑھی حروف مشبہ بالفعل کی۔ حروف مشبہ بالفعل جو تھے وہ کتنے تھے؟ 6۔ حروف مشبہ بالفعل کتنے تھے؟ 6 تھے۔ انا، انا، کانا، لیتا، لاکنا، لا، اللہ۔ اب یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ یہ مبتدا کو دیتے تھے نصب۔ مبتدا کو کیا دیتے تھے؟ نصب۔ مبتدا کو نصب دیتے تھے اور خبر کو کیا دیتے تھے؟ رفع۔ خبر کو کیا دیتے تھے؟ رفع۔ مبتدا جو ہے وہ ان کا کیا کہلاتا تھا؟ اسم، اور خبر ان کی کیا کہلاتی تھی؟ خبر۔ اچھا، خبر جب مبتدا کی خبر تھی تب بھی مرفوع تھی، جب حروف مشبہ بالفعل کی خبر تھی تب بھی کیا تھی؟ لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے وہ مرفوع تھی مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے، اور اب وہ مرفوع ہے حروف مشبہ بالفعل کے خبر ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، اب آپ آگے آ جائیں تو یہ لیسن نمبر ہمارا ہے 14۔ لیسن نمبر کیا ہے؟ 14۔ اب لیسن نمبر 14 میں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے افعال ناقصہ کا اسم۔ افعال ناقصہ کا، اچھا ہم پڑھ رہے ہیں مرفوعات۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ مرفوعات، یعنی وہ چیزیں جو مرفوع ہوتی ہیں۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا حروف مشبہ بالفعل کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کی، کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اب ہم پڑھ رہے ہیں افعال ناقصہ کا اسم، یعنی افعال ناقصہ کا اسم جو ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ افعال ناقصہ کیا ہے؟ یہ وائٹ بورڈ صاف کرنے کے لیے لائے ہیں کچھ؟ آپ کو پورے ادارے میں سے کہیں سے کوئی کپڑا نہیں ملا؟ اچھا جی، یہ افعال ناقصہ کا اسم جو ہے یہ مرفوع ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، یہ افعال ناقصہ، اب کچھ سوالوں کے جواب ہیں جو ہم نے لینے ہیں۔ کچھ سوالوں کے کیا ہیں؟ جواب ہیں جو ہم نے لینے ہیں۔ یہ وائٹ بورڈ صاف ہو جائے تو پھر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہمارے پاس نا کچھ سوالوں کے ہم نے جواب لینے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ افعال ناقصہ سے کیا مراد ہے؟ افعال ناقصہ سے یعنی افعال ناقصہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ یہ کتنا سوال ہو گیا؟ پہلا۔ لکھیں بھائی، آپ لوگ لکھیں، ساتھ ساتھ میسج پہ لکھیں۔ پہلا کوشچن کیا ہو گیا کہ افعال ناقصہ سے ہری آپ لکھیں۔ شاباش شاباش۔ یوٹیوب والے بھی لکھیں، میں یوٹیوب والوں کو بھی دیکھتا ہوں۔
अच्छा, पहली चीज होगी कि अफ़ाल नाक़िसा से कौन कौन मुराद है। अफ़ाल नाक़िसा से कौन कौन मुराद है। आप बुक पर देखें तो लिखा हुआ है अफ़ाल नाक़िसा की दो किस्में हैं, काना व अख़वात हुआ और कादा व अख़वात हुआ। अच्छा, अब ये जो माइक किसका खुला है भाई, माइक बंद करें। आयशा, मैं कर देता हूँ, अब आ जाए जी। अच्छा, आप अगर अपनी किताब पर देखें तो आपको नजर आएगा कि अफ़ाल नाक़िसा की दो किस्में हैं, काना व अख़वात हुआ और कादा व अख़वात हुआ। गोया के अफ़ाल नाक़िसा में ये दो चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं? दो चीजें आती हैं। अब काना व अख़वात हुआ कितने हैं और कादा व अख़वात हुआ कितने हैं? ये पंखा एक दफा बंद करें। कौन सा पंखा शोर कर रहा है? इसको बंद कर दें, थोड़ा थोड़ा इधर पर्दे के करीब हो जाए ना, तो ताकि ये इधर वाले पंखे की आपको हवा लगती रहे। अच्छा, अब ये जो काना व अख़वात हैं, नीचे थोड़ा सा नीचे आए तो देखें ये कितने हैं? 13। ये कितने हैं? 13। काना व अख़वात हुआ कितने हैं? 13। आप नीचे आगे जाएं, पता नहीं कादा व अख़वात हुआ इन्होंने दिए, इन्होंने कादा व अख़वात हुआ नहीं दिए। कादा व अख़वात हुआ। अच्छा, आप दोनों पार्टीज जो हैं, ऑनलाइन वाले भी और जो फिजिकली क्लास ले रहे हैं, दोनों ही वाइट बोर्ड पर देखें तो कादा व अख़वात हुआ जो है ना, कादा व अख़वात हुआ, इनकी 3 किस्में होती हैं। इसकी कितनी किस्में हैं? एक किस्म को कहते हैं अफ़आले मुकारबा। अफ़ाले अफ़ाले मुकारबा, मुकारबा। और एक किस्म को कहते हैं अफ़आले रजा। क्या कहते हैं? अफ़आले रजा, रजा उम्मीद, जिसको क्या कहते हैं? उम्मीद, रजा। अच्छा, तीसरी किस्म है इसकी अफ़आले शुरू। अफ़आले शुरू, तीसरी किस्म क्या होगी? अफ़आले शुरू। अच्छा, अफ़ाले रजा भी अफ़ाले मुकारबा भी 3 है, अफ़ाले रजा भी 3 है, और अफ़ाले शुरू जो है ना, जिसको आप शुरू नहीं कहते, हमने खाना शुरू कर दिया है, ठीक है, हमने पढ़ना शुरू कर दिया है, हमने मेहनत। अच्छा, ये जो अफ़ाले शुरू है ना, ये बेशुमार हैं। ये क्या है? बेशुमार, यानी ये चंद नहीं है कि जिनको मैं यहाँ पे लिख दूं। अफ़ाले मुकारबा 3, अफ़ाले रजा 3, लेकिन अफ़ाले शुरू क्या है? बेशुमार हैं। अच्छा जी, तो गोया के ये अफ़ाले नाक़िसा काना व अख़वात हुआ कितने हो गए? काना व अख़वात हुआ कितने हो गए? 13। और फिर जो कादा व अख़वात हैं उसमें अफ़ाले मुकारबा 3 और अफ़ाले रजा 3, 3 और 3 6, 13 और 6 कितने हो गए? 18 हो गए ना? शाबाश, 19 हो गए। कितने हो गए? अच्छा, और अफ़ाले शुरू जो हैं वो कई हैं। अफ़ाले शुरू जो हैं वो क्या है? कई हैं। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ एक और पॉइंट आपको समझा दूं। काना व अख़वात हुआ 13 है। काना व अख़वात हुआ कितने हैं? 13 है। यानी मुतय्यन हो गया ना कि 13 हैं। और वो 13 कौन से हैं जी? वो ये हैं जो बुक के ऊपर आपके सामने है। मैं एक मिनट बुक पे ले आता हूँ, ये देखें। काना सारा असबा अमसा अजहा जल्ला बाता लईसा मा जाला मन फक्का मा फातिया मा बारिहा मा दामा। अच्छा, इसको क्या, जब अरबी ग्रामर में कोई चीज मुतय्यन हो जाए, जब अरबी ग्रामर में कोई चीज क्या हो और वो किसी उसूल के तहत आ जाए, तो उसको कहते हैं कियासी। क्या कहते हैं?
81. مطلب یہ کہ افعال ناقصہ 13 ہیں اور یہ 13 کے 13 ہی رہیں گے, یہ 12 نہیں ہوں گے, یہ 14 نہیں ہوں گے, یہ یہی ہیں. یہ کیا ہے؟ اور یہ بدلیں گے نہیں. اچھا, اسی طرح آپ وائٹ بورڈ پر اگر آپ دیکھیں تو افعال مقاربہ جو ہیں وہ 3 ہیں اور افعال رجا جو ہیں وہ بھی کتنے ہیں؟ تو یہ 3 سے آگے 4 ہوں گے. افعال رجا 3 ہیں تو وہ 5 ہوں گے. تو انہیں بھی کیا کہیں گے؟ 81. انہیں بھی کیا کہیں گے؟ 81 کا مطلب یہ جو کسی اصول کے تحت آ جائے. جو کیا آ جائے؟ کسی اصول کے تحت, کسی قاعدے کے تحت جو آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ افعال, اس کو کہتے ہیں 81. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا, افعال شروع جو ہے اب یہ کئی ہیں. اب یہ کیا ہے؟ کئی ہیں. مثلا میں ان میں 10-15 یہاں لکھ بھی دیتا ہوں, 10-15 یہاں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کئی ہیں. تو جب عربی گرامر میں کوئی اس طرح کی چیز آئے تو اس کو کہتے ہیں سماعی. کیا کہتے ہیں؟ اب یہ مجھے دیکھنا پڑے گا, سین کے اوپر زبر ہے, یہ زیر ہے, میں ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں. سماعی یا سماعی اس کو کہتے ہیں. وہ 81 ہے. یہ کیا ہے؟ 81. قاف کے نیچے کیا ہے؟ قاف کے نیچے کیا ہے؟ اور یہ سماعی ہے. اس میں سین کے اوپر کیا ہے؟ زبر. سین کے اوپر کیا ہے؟ زبر. اور آپ لوگ نا مطلب صرف وہ لکیر کے فقیر نہ بنا کریں, میں یہ سب کوئی بات کر رہا ہوں. مثلا آپ کو سماعی کی تعریف نہیں آ رہی, گوگل لکھیں. کیا کریں؟ ابھی دیکھیں میں نے گوگل کیا, میں نے صرف لکھا سماعی تو نیچے سماعی کی تعریف آ گئی. 81 کی ضد. 81 کی وہ لفظ جو قاعدہ صرف کے مطابق نہ بنا ہو بلکہ اہل زبان اس کو بولتے ہیں اور ان سے سنا گیا ہو. یعنی سماعی کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی قاعدے کے تحت نہ آئے. جو کسی قاعدے کے تحت نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں سماعی. اب جیسے افعال شروع ہیں, یہ کتنے ہیں جی اور کون کون سے ہیں؟ یہ جی عربوں سے سنے ہیں. عربوں سے سنے ہیں. عربوں نے اس کو بھی افعال شروع کے طور پر استعمال کیا ہے, اس کو بھی کیا ہے, اس کو بھی کیا ہے, اس کو بھی کیا ہے. اب یہ کئی ہیں, ان کا شمار ممکن ہے؟ ان کا شمار ممکن ہے؟ یہ ہمیں لغت سے ہی پتہ چلتا ہے. تو یہ بنیادی کچھ باتیں ہو گئیں. اب آتے ہیں افعال ناقصہ کا اسم, یعنی افعال ناقصہ کا اسم مرفوع ہوگا. افعال ناقصہ کا اسم کیا ہوگا اور خبر کیا ہوگی افعال ناقصہ کی؟ افعال ناقصہ کی خبر کیا ہوگی؟ افعال ناقصہ کا اسم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مرفوع. اور خبر جو ہے وہ کیا ہوگی؟ منصوب. خبر کیا ہوگی؟ افعال ناقصہ کا اسم جو ہے, آپ لوگ بھی دیکھیں شاباش, افعال ناقصہ کا جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ مرفوع. اور خبر جو ہے وہ کیا ہے؟ منصوب. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ افعال ناقصہ کا اسم اصل میں کیا تھا؟ آپ لوگ لکھ کے بتائیں, اور آپ لوگوں میں سے جس سے میں پوچھوں وہ بتائیں. سقیفہ آپ بتائیں, افعال ناقصہ کا اسم اصل میں کیا تھا؟ سارش, سمیرہ, حمیرہ, آپ لوگ بتائیں لکھ کے. افعال ناقصہ کا اسم اصل میں کیا ہوگا؟ کسی کو بھی نہیں پتا؟ ہاں, مبتدا. کیا ہوگا؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جتنے نواسخات ہیں, جتنے ہم پڑھ رہے ہیں, یہ سب کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور کس پر؟
मुब्तदा जो है वो हमेशा इनका इसम बनेगा और खबर जो है वो हमेशा इनकी क्या बनेगी, लेकिन अमल मुख्तलिफ होगा। अमल जो है वो क्या होगा, कोई अपने इसम को नसब देंगे और खबर को रफा देंगे, और कोई इसम को रफा देंगे और खबर को क्या करेंगे, नसब देंगे। खबर को क्या करेंगे कि कुछ का इसम मरफू होगा और खबर क्या होगी, इसम मरफू होगा और खबर क्या होगी, हद हो गई है बोलो, मंसूब। इसम क्या होगा, अब सारे बोले इसम क्या होगा, सारे बोले इसम क्या होगा, और खबर क्या होगी, और कुछ का इसम मंसूब होगा और खबर क्या होगी, जोर से बोले, इसम क्या होगा, मंसूब, और खबर क्या होगी। जैसे हुरूफे मुशब्बह बिल फेल है, हुरूफे उनका इसम क्या था, उनका इसम क्या था, मंसूब। हुरूफे मुशब्बह बिल फेल का इसम क्या था, और खबर क्या थी, मरफू, खबर क्या थी। और ये जो अफ़ाले नाक़िसा हैं इनका इसम क्या है और खबर क्या है, मंसूब। तो अफ़ाले नाक़िसा आप देखें जी, ज़ैल में काना व ख़वातु हा का जिक्र किया जा रहा है। अब आगे है काना व ख़वातु हा, ये 13 हैं जी। अमल देखें, काना व ख़वातु हा मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं। किस पर दाखिल होते हैं, काना व ख़वातु हा किस पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं। एक मिनट जरा रुकिएगा जी। जी काना व ख़वातु हा मुब्तदा और खबर पर क्या होते हैं, दाखिल, दाखिल नहीं दाखिल, दाखिल होते हैं। और मुब्तदा को रफा और खबर को क्या देते हैं, नसब। और मुब्तदा इनका क्या बन जाएगा, मुब्तदा कोई नफाल का इसम और खबर कोई नफाल की क्या कहते हैं, खबर कहते हैं। अच्छा, कुछ बातें हम कॉमन सी एक दफा दोहरा लेते हैं। ये जितने नवासिखात हैं, ये जितने, चाहे रुफ़े मुशब्बह बिल फ़ेल हैं, चाहे काना व ख़वातु हैं, चाहे कादा व ख़वातु हैं, और दीगर भी, और दीगर, ये कई किस्में हैं। ये सब के सब, पहली बात, ये किस पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा और किस पर दाखिल होते हैं, दोबारा किस पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा और खबर पर। ये सारे के सारे, ये बात, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं, ये मुब्तदा और खबर पर दाखिल होंगे। अच्छा, दूसरी बात, मुब्तदा को ये क्या बना लेते हैं अपना, जोर से बोले, मुब्तदा को क्या बना लेते हैं, ये अपना इसम। और खबर को ये क्या बना लेते हैं, अपनी, जोर से बोले, मुब्तदा को क्या बनाते हैं, मुब्तदा को क्या बनाते हैं, अपना इसम। और खबर को क्या बनाते हैं, अपने। अच्छा, ये बात भी, इसमें भी कोई चेंजिंग होगी नहीं। अच्छा, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि बाज वो हैं जो इसम को नसब देते हैं और खबर को रफा देते हैं, और बाज वो हैं जो इसम को रफा और खबर को नसब। बाज इसम को नसब और खबर को रफा, बाज जो है वो इसम को रफा और खबर को नसब। यानी इस चीज में बात आगे पीछे होती रहेगी, बात आगे पीछे। अब हमने पहले पढ़े हुरूफ़े मुशब्बह बिल फ़ेल, हमने पहले क्या पढ़े, हुरूफ़े मुशब्बह बिल, वो इसम को क्या देते थे, इसम को क्या देते थे, नसब, और खबर को क्या देते थे, रफा। और ये जो अफ़ाले नाक़िसा हैं, ये उसके क्या है, उल्ट, उसके क्या है, ये इसम को रफा दे रहे हैं और खबर को क्या दे रहे हैं, नसब दे रहे हैं। तो काना व ख़वातुहा मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा को रफा और खबर को नसब देते हैं। मुब्तदा कोई नफाल का इसम और खबर कोई नफाल की क्या कहते हैं। जैसे देखें, काना खालिदुन शुजान, काना खालिदुन शुजान, किताब के ऊपर किधर है, ये मिसाल आपके सामने लिखी हुई है जी, काना खालिदुन, खालिद
शुजाअन, खालिद जो है वो बहादुर था, खालिद जो है वो बहादुर है। अच्छा, अगर हम इस इबारत को असल देखें, असल में था मुब्तदा और खबर, तो वो क्या आता, खालिदुन शुजाउन, खालिदुन शुजा, यानी काना को अगर हटाएं तो असल बात क्या बनेगी, खालिदुन शुजाउन, खालिद बहादुर है, खालिद बहादुर है। खालिद मुब्तदा और शुजाउन खबर, खालिद मुब्तदा और शुजा, मुब्तदा और शुजा खबर। लेकिन जब काना आया, जब क्या आया, काना ने दो काम किए, काना ने कितने काम किए, एक को कहते हैं लफ्जी और दूसरे को क्या कहते हैं, मानवी। काना ने कितने काम किए, पहला काम लफ्जी, पहला काम लफ्जी और दूसरा काम मानवी। अब आप बताएं कि लफ्जी क्या किया और मानवी क्या किया। देखें, लफ्जी तो यह किया कि पहले ये मुब्तदा और खबर थे और दोनों मरफू थे, दोनों क्या थे, लेकिन काना ने आकर खालिद को अपना इसम बना लिया और इसको रफा ही दिया, लेकिन शुजा को अपनी खबर बना लिया और इसको क्या दिया, नसब दिया। क्या दिया, तो ये कौन सी तब्दीली हुई, लफ्जी, ये कौन सी तब्दीली हुई, और ये लफ्जी तब्दीली किसकी वजह से हुई, जोर से बोले, किसकी वजह से हुई, काना की वजह से लफ्जी तब्दीली हुई। अच्छा, दूसरी तब्दीली हुई मानवी, दूसरी तब्दीली क्या हुई, देखें, खालिद बहादुर था, खालिद बहादुर, मुमकिन है अभी भी बहादुर हो और मुमकिन है अभी बहादुर ना हो, अभी बहादुर ना हो। क्या मतलब जी, मतलब ये है कि होता है एक बंदी जो है, मतलब एक बंदी पढ़ाकू है, बाद में वो पढ़ाकू नहीं रही, बुरी सोबत में पड़ गई, बुरी आदत में पड़ गई, या पढ़ाकू रही नहीं। तो खालिद बहादुर था लेकिन अब बूढ़ा हो गया है या उसका एक्सीडेंट हुआ और वो माजूर हो गया बेचारा, तो अब वो बहादुर रहा नहीं। और यह भी मुमकिन है कि अभी भी बहादुर, अभी भी। अच्छा, गोया के काना ने आकर जो इस जुमले का माना था, देखें, खालिदुन शुजाउन, अगर हम मुब्तदा खबर को देखें, खालिदुन शुजाउन, खालिद बहादुर है, तो इस जुमले में का जो माना है वो क्या है, खालिद का बहादुर होना, खालिद का, खालिद का। काना ने आकर खालिद के बहादुर होने को किसके साथ जोड़ा, जमाने, क्या जमाने माजी के साथ, जमाने खालिद बहादुर था, क्या खालिद बहादुर था, काना खालिदुन शुजान, खालिद बहादुर था। वजाहत और समझ आ रही है को नहीं आ रही, आप लोगों को भी आ रही है जो लोग इधर ऑनलाइन है, जो लोग इधर ऑनलाइन है आपको भी समझ आ रही है। चले माशाल्लाह, बड़ी बात है। अच्छा, ये जिस तरह ना कहते हैं पढ़ने के लिए इस्तकामत चाहिए, पढ़ने के लिए क्या चाहिए, तो जिस तरह उस्ताद की तरफ से इस्तकामत ज़रूरी होती है ना, उस्ताद को भी कोई बाद औकात मजबूरी पड़ जाती है, लेकिन उसके पीछे अब देखा जाएगा तालिब इल्म इस्तकामत इख्तियार करते हैं कि नहीं करते। तो ये बाद मामलात मसाइल की वजह से ये पिछले कुछ दिन क्लास नहीं हो सकी, कुछ मेरी तबीयत भी नहीं थी ठीक, कुछ और मसले मसाइल थे, तो अब देखा जाएगा कि आप साथ मुस्तकीम रहते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर क्लास नहीं हुई तो आपका तो कोई हरज नहीं ना, आप पीछे से दोहराते रहो, आप पीछे से दोहराते रहो। अच्छा जी, तो अब आगे चलें जी।
एक दफा दोबारा इस पेज को देखें, इस पेज पे क्या है जी, मैं दोबारा दोहरा के फिर आगे चलते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मरफूआत हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो क्या हैं। अच्छा, हम इसमें क्या क्या पढ़ चुके, लिखें। हम इसमें क्या पढ़ चुके, नंबर 1 फाइल, नंबर 1 और नंबर 2 नाइब फाइल, पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, नाइब फाइल। नंबर 3 मुब्तदा, नंबर 3 मुब्तदा, और नंबर 4 खबर, नंबर 4 है। और नंबर 5 हमने पढ़ा था हुरूफे मुशब्बा बिल फेल की खबर, हुरूफे मुशब्बा बिल फेल की। चले मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास पेंसिल नहीं है। तो फाइल हो गया, ठीक है, नाइब फाइल हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, मुब्तदा हो गया, उसके बाद क्या हो गया, खबर, हुरूफे मुशब्बा बिल फेल की खबर। अब क्या आ गया, फाले नाक्सा का इसम। कितने पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 और 7, कितने, 6। अच्छा अच्छा, चले मैं, होता है ना भटक जाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखा करें मेरा। तो कितने हो गए, अच्छा 6 हुए। तो अब अफ़ाले नाक़सा की बता दिया जी, 2 किस्में हैं, काना व ख़वातुहा और कादा व ख़वातुहा। काना व ख़वातुहा कितने हैं, 13। कितने हैं, वो कौन से हैं, काना सारा असबा अमसा ज़ल्ला बाता माज़ा अला मा बारिया मरफ़का मा दामा लईसा। तो इन्होंने तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे की हुई है। बहरहाल ये कल 13 के 13 मैंने सबसे सुनने हैं, 13 के 13 मैंने सबसे, ऑनलाइन वालों से भी और ऑफलाइन वालों से भी। मैं कहूँगा हाँ जी ज़ुबानी सुनाए, 13 काना व ख़वात हुआ 13 कौन से हैं, तो आपने एक सांस में सुनाने हैं। काना सारा असबाम सा जल्ला बाता लईसा मा ज़ाला मन फक्का मा फतिया मा बारिया मा दामा। चले मैं आपको 3 मिनट देता हूँ, 3 मिनट बाद मैं सुनूंगा, 3 मिनट में ये याद करें। तो याद हो गया, हाथ खड़ा करें आप ऑनलाइन वालों में से, जल्दी करें जल्दी करें, हाथ खड़ा करें। और ये ना हो कि PDF निकाल के उसके ऊपर से मुझे सुना दें। किसी को भी नहीं याद हुआ, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, शाबाश। कौन सुनाएगा जी, नसरीन अख्तर सुनाए। काना सारा अस्बहा अमसा अضحى वल्ला बाता लैसा मा ज़ाला मन फक्का मन फक्का माँ फातिया, मा फतिया आगे मा दामा और मा बरिहा। आयशा, आयशा शहाना, आप सुनाए, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काना सारा अज़बा अमसा अज़हा ज़ल्ला बाता लैसा मा ज़ाला मा अनफका मा अच्छा फता जी, मादा बरिया मादा। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। कुछ थोड़ी बहुत अटकन है, बहरहाल वो आप इसको बाद में याद कर लीजिएगा और कल तक ये क्लियर हो। अच्छा, इसके बाद जो है वो क्या बयान हुआ जी, अमल के ये मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं। मुब्तदा को रफा देते हैं और खबर को क्या देते हैं, नसब देते हैं। मुब्तदा को इनका इसम और खबर को इनकी क्या कहते हैं, खबर कहते हैं। अच्छा जी, काना खालिद शुजान, खालिद बहादुर था, खालिद बहादुर था। या फिर आगे के ये जो है ना जी, वजाहत आ गई कि काना फिल नाकिस है, खालिद इसका इसम है इसलिए मरफू है, और शुजा जो है ये इसकी खबर है इसलिए क्या है, मंसूब है। फिर मजीद मिसालें दी हुई हैं, आप देखें। कानल हर्रु शदीदन, गर्मी शदीद थी। कानल हर्रु शदीदन, गर्मी शदीद थी। सारे समरु नाज़िजन, फल पक गया। अच्छा, ये अब मैं आपको कल बताऊंगा कि ये सारा किस माने के लिए आता है, असबहा किस माने के लिए आता है, अमसा अजहा जल्ला बाता, यानी इन सब का ना एक अपना अपना माना है। इन सब का क्या है, एक अपना अपना
تو ان سب کا جو اپنا اپنا معنی ہے اس کی تفصیل اور ڈیٹیل کب ہو جائے گی؟ کل۔ چلیں کچھ کی میں آج بتا دیتا ہوں، کچھ کی کل کر لیں گے۔ یہ جو سارا ہے، سارا کیا جی؟ سارا، یہ دلالت کرتا ہے تبدیلی پر۔ یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ تبدیلی پر، یعنی ایک چیز جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، ایک چیز جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے، یعنی ایک چیز، ایک کیفیت، ایک حالت، ایک صورت سے بدل کر دوسری کیفیت، دوسری حالت اور دوسری صورت میں چلی گئی ہے۔ سمجھ آئی؟ سارا لکھ لیں، اپنے پاس لکھیں کہ سارا کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ یہ کیفیت، حالت، صورت، ذات، اس کی تبدیلی پہ دلالت کرتا ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی، جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، سار الغنی، سار الغنی فقیرن، سار الغنی، دیکھیں جیسے ادھر دیکھیں، سار الغنی فقیرن، غنی جو ہے وہ فقیر بن گیا، غنی جو ہے وہ کیا بن گیا؟ اب دیکھیں حالت ہی چینج ہو گئی، ایک حالت ہے امیری والی، ایک حالت ہے تو نگری والی، ایک حالت ہے کس والی؟ پیسے والی، ایک حالت ہے کس والی؟ مال و دولت والی، ایک حالت ہے کس والی؟ لینڈ لارڈ والی۔ تو ایک حالت ہے غربت والی، ایک حالت ہے مفلسی والی، ایک حالت ہے کون سی؟ تنگی والی، ایک حالت کون سی ہے؟ مال کے نہ ہونے والی۔ تو دو حالتیں ہیں، تو سارا نے بتایا کہ وہ ایک حالت سے بدل کر دوسری حالت میں کیا ہو گیا؟ چلا گیا۔ اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے، سار الفقیر غنیا، سار الفقیر، فقیر جو ہے وہ کیا بن گیا؟ امیر بن گیا، فقیر جو ہے وہ کیا بن گیا؟ امیر بن گیا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور اسی طرح مثال ہے بعض اوقات، بہرحال آپ کو بات سمجھ آ گئی، زیادہ اس کو لمبا نہیں کرتے کیونکہ اس کتاب والے نے لکھا ہوا نہیں ہے، تو پھر زیادہ لمبا کریں گے وہ آپ کو ہی لکھنا پڑے گا۔ تو سارا اس چیز پہ دلالت کرتا ہے۔ اب سارا کے بعد کون ہے؟ سارا کے بعد کون ہے؟ اصبح۔ اچھا، اصبح جو ہے یہ صبح کے وقت پہ دلالت کرتا ہے۔ اصبح کس پہ دلالت کرتا ہے؟ اصبح کس پہ دلالت کرتا ہے؟ صبح کے وقت پہ۔ یعنی یہ جو جملے کا معنی ہوتا ہے، جملے کا، یہ جملے کے معنی کو صبح کے وقت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ جملے کے معنی کو کس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے؟ صبح کے۔ دیکھیں، اصبح الجو صافیا، اصبح الجو، اب اصبح تو فعل ناقص ہے، اب اصل میں عبارت کیا تھی؟ الجو۔ اگر ہم اصل میں دیکھیں جب یہ مبتدا خبر تھا تو تب کیا تھا؟ الجو صافیون، الجو صافیون، یا الجو صافین، بہرحال الجو صافیون ہی کر لیں۔ ہوا صاف ستھری ہے۔ پہلے کیا تھا؟ جب اصبح نہیں تھا تو کیا تھا؟ الجو صافیون، ہوا صاف ستھری ہے، ہوا صاف ستھری۔ اصبح نے آ کر ہوا، اب جملے کا معنی کیا بنا؟ ہوا کا صاف ستھرا ہونا، ہوا کا صاف ستھرا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ہوا کے صاف ستھرے ہونے کو اپنے صبح کے وقت کے ساتھ جوڑ لیا۔ اصبح الجو صافیا، صبح کے وقت ہوا صاف ہو گئی، صبح کے وقت ہوا کیا ہو گئی؟ سمجھ تو نہیں آئی؟ اچھا اچھا، اب آ گیا امسا۔ امسا، یہ امسا نا ماضی کا صیغہ ہے، تو آپ کو پتا ہے ماضی کی پوری گردان ہوتی ہے، امسا، امسیا، امسو، امست۔ تو یہ امست واحد مونث کا صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ ہے؟ ہاں، یہ اصبح بھی ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا اصبح، پھر اس کی تثنیہ آئے گی، اصبحا، اصبحو، اصبحت۔
ٹھیک ہے. تو امسا، اب امسا کیا کرتا ہے؟ یہ شام کے وقت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. کس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے؟ دیکھیں امست السماء صافیتن، اب اصل میں تھا السماء صافیتن، السماء صافیہ، آسمان جو ہے وہ کیا ہے؟ صاف ہے. آسمان جو ہے وہ صاف ہے. لیکن جب امسا شروع میں آیا، اس نے دو کام کیے. ایک کام تو یہ کیا کہ السماء کو اپنا اسم بنا لیا اور صافیہ کو اپنی کیا بنا لی؟ خبر. اور جب خبر بنائی تو اس کو کیا دیا؟ نصب. کیا دیا؟ اور دوسرا اس نے معنی میں تبدیلی کی، اور معنی میں تبدیلی کیا کی کہ اس نے اس کو شام کے وقت کے ساتھ جوڑ دیا. کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ شام کے وقت کے ساتھ. اچھا، تو امست السماء صافیتن، شام کے وقت آسمان صاف ہو گیا. شام کے وقت آسمان کیا ہو گیا؟ صاف ہو گیا. چلیں یہ نحو کا آج ہم نے پڑھ لیا. اب ہم کس کا پڑھتے ہیں؟ صرف. اچھا جی، اچھا یہ جو ہے نا اپنا صرف کی کتاب، اس میں آگے یہ ختم ہو جاتی ہے. اس میں کیا ہے جی؟ کچھ قواعد ہیں. کیا ہے کچھ؟ اچھا جی. اور اس کا چلیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ قواعد کیا ہیں اور یہ عربی میں کس طرح استعمال ہوتے ہیں. اور یہ یوں سمجھیں کہ بڑی اہم ترین بحث ہے. کیا ہے بڑی اہم ترین؟ بحث نہیں، بحث. کیا ہے؟ بحث نہیں، بحث. کیا ہے؟ بحث. اچھا ہم نے پڑھا تھا ہفت اقسام. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اقسام. اچھا اس میں آپ نے ہفت اقسام میں 7 چیزیں پڑھی. کتنی چیزیں پڑھی؟ 7 چیزیں پڑھی. اگر ہم وہ 7 چیزیں وائٹ بورڈ پہ لکھیں تو ہم بآسانی لکھ سکتے ہیں. ہم نے پڑھا عالم. کیا پڑھا؟ پھر ہم نے پڑھا معمول. پھر ہم نے پڑھا مضاف. پھر ہم نے پڑھا مثال. پھر ہم نے پڑھا اجوف. پھر ہم نے پڑھا ناقص. اور پھر ہم نے پڑھا لفیف. ایسے ہی ہے نا؟ سالم، معموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، یعنی اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی زبان، میں نے کیا کہا؟ دوبارہ میں نے کیا کہا؟ اونچا ذرا. آپ لوگ بھی لکھ لیں. آن لائن والے کیوں نہیں لکھ رہے؟ میں نے کیا کہا؟ کیا ہو؟ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو. آپ کی پنجابی ہو، اردو ہو، پشتو ہو، فارسی ہو، ہر زبان میں ایک اصول استعمال ہوتا ہے. ایک اصول کیا ہوتا ہے؟ استعمال نہیں، استعمال. کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے. کیا اصول استعمال ہوتا ہے؟ کہ زبان میں جب بھی الفاظ بھاری ہونے لگیں، بوجھل ہونے لگیں، ان کا پڑھنا مشکل ہونے لگے تو وہ اس کو آسان کر لیتے ہیں. وہ اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ کیا کر لیتے ہیں؟
आसान कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको उर्दू की मिसालें दूं कि उर्दू में एक लफ्ज पहले कुछ था, पहले क्या था, और फिर वो कुछ बन गया। अच्छा, मसलन मैं आपको पंजाबी के, मुझे कुछ मिसालें याद आ रही हैं। पंजाबी का एक लफ्ज है फिटे मुंह। क्या लफ्ज है? फिटे। अब ये असल में ये फिटे मुंह नहीं था, असल में क्या था? असल में ये था फटे मुंह। क्या था? फटे मुंह। कहते थे जा, ये मैंने कहाँ से सुना है? ये मैंने सुना है किससे? आफ्ताब इकबाल से। उसका प्रोग्राम आता है ना, आप लोगों में से भी शायद कुछ लोग सुनते हो। और खबरनाक के क्या, मुझे न प्रोग्राम का नाम नहीं याद है, तो उसकी कोई बात औकात फेसबुक पे कोई ना कोई इस तरह छोटी मोटी वीडियो आ जाती हैं। तो वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कुछ ना कुछ अदब अदाब, उर्दू के अदब वगैरह पर भी छोटा मोटा उनका वो होता है ट्रांसमिशन में, यानी थोड़ा सा टाइम होता है। अब ये था फटे मुंह। क्या था? अच्छा, जाओ ए फटे मुंह वाले, मतलब तेरा मुंह फटे, या तू कितना जनाब खोल के मुंह बात करता है। अब ये जुबान पे मुश्किल था, अब ये जुबान पे क्या था? तो ये फटे मुंह से क्या बन गया? फिटे मुंह। यानी उन्होंने इसको आसान कर लिया, उन्होंने इसको क्या कर लिया? आसान कर लिया। इसी तरह और भी कहीं आपको अल्फाज मिल जाएंगे जिनका तलफ्फुज कुछ था और अब वो क्या इस्तेमाल हो रहे हैं? कुछ। अब वो क्या इस्तेमाल हो रहे हैं? कुछ इस्तेमाल हो रहे हैं। था वो कुछ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और मिसाल दूं। आप में से किसी ने साइकिल चलाई होगी या देखी होगी। साइकिल के टायर के ऊपर एक कवर होता है ऐसे लोहे का, उसको क्या कहते हैं? सुमेरा को पता होगा जरूर। बॉडी गार्ड के बाद, हाँ, क्या कहते हैं? बॉडी गार्ड ही कहते हैं। टायर के ऊपर जो होता है, टायर के ऊपर पूरा, उसको क्या? हाँ, उसको कहते हैं बॉडी गार्ड। क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये असल में अब देखें ना, ये बॉडी गार्ड नहीं है लफ्ज, ये क्या है? बम्पर नहीं जी, बम्पर तो कुछ और होता है, बम्पर तो गाड़ियों का होता है। अच्छा, आयशा तस्लीम लिखती है बॉडी गार्ड। अच्छा, अब देखें कोई इसको बॉडी गार्ड कह रहा है और कोई क्या कह रहा है? बॉडी गार्ड। अच्छा, ये अमूमन है बोलते हैं बॉडी गार्ड। अच्छा, ये माडी लफ्ज नहीं है, ये है मड गार्ड। मड गार्ड। गार्ड कहते हैं हिफाजत करने वाला। गार्ड किसे कहते हैं? बचाने वाला। और मड कहते हैं गारे को। मड किसको कहते हैं? गारा, कीचड़। तो मड गार्ड, या आप सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं ना, गार्ड हिफाजत करता है ना, तो मड गार्ड गारे से, कीचड़ से हिफाजत करने वाला। कीचड़ से क्या करने वाला? लेकिन आपने उसको क्या बना दिया? मडी गार्ड। यानी जुबान पे मड गार्ड पढ़ना मुश्किल था, बोझल था, तो आपने उसको क्या बना दिया जी? मडी गार्ड बना दिया। तो इसी तरह अरबी में बाद कलिमात होते हैं कि वो पढ़ने मुश्किल होते हैं। वो पढ़ने क्या होते हैं? मुश्किल होते हैं। तो उनको उनको वो आसान कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं? आसान। अब देखें, मैं अब ये जो तब्दीली है, ये जो क्या है, यानी मुश्किल को आसान बनाना, मुश्किल को, बाज़ औक़ात ये मुश्किल को आसान बनाना जायज़ होता है। यानी आप मुश्किल पढ़ो ये भी जायज़ है, और आप आसान पढ़ो ये भी क्या है? जायज़ है। ये भी क्या है? अब मैं आपको मिसाल के तौर पर कुछ मिसालें देता हूँ, आप वाइट बोर्ड पे आ जाएं। देखें, एक लफ्ज है
रसून, क्या लफ्ज है? रसून, क्या है? रसून, झटके के साथ। अब ये पढ़ना देखिए, एक है इस तरह आप पढ़े रसून और एक आप पढ़े रासून। क्या पढ़े? आसान क्या है? रासून। इसी तरह मिसाल के तौर पर एक है बो सुन, बो सुन, और एक आप इसको पढ़े बू सुन। क्या पढ़े? बू सुन। आसान क्या है? बू सुन है या बू सुन आसान है? बू सुन मुश्किल है और बू सुन पढ़ना क्या है? आसान। इसी तरह एक लफ्ज है, इसी तरह एक लफ्ज है, एक मिनट जी सिर्फ 1 सेकेंड। अब एक लफ्ज है ज़ेबुन। क्या है जी? ज़ेबुन। अब मुझे आप बताएं कि ज़ेबुन पढ़ना मुश्किल है या ज़ीबुन? क्या जी? ज़ेबुन ये मुश्किल है और ज़ीबुन पढ़ना क्या है? आसान है। ठीक है, तो अब मुश्किल को क्या बना दिया? अब एक है आप पढ़ें कावाला। क्या पढ़ें? कावाला। देखें आपके सामने मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया कावाला। अब कावाला पढ़ना मुश्किल है, और अगर आप इसी को पढ़ें काला, इसी को क्या पढ़ें? काला। वइज़ काला रब्बुका वइज़ काला रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू काला। अब ये काला असल में क्या था? कावाला। अब देखें बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है ये। अब आपको पता चलेगा, आप बाद औक़ात हैरान होंगे कि हम इसको क्या पढ़ते थे और ये असल में क्या था। ये असल में क्या था? हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। एक नुक्ते ने क्या बना दिया? महरम नहीं, आपकी तो हर जगह गलती है। महरम से मुजरम नहीं, मुजरिम नहीं। क्यों हो जाता है? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अभी ना कल मैं वो एक हमारे दोस्त हैं नाज स्टूडियो, उन्होंने इदारा बनाया हुआ है यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, उनकी बड़ी अच्छी वीडियोज आती हैं। उन्होंने रिकॉर्डिंग की है। हाँ आप देखें ना, जिनको पता है उनको पता है। फातिमा कह रही है कि मुजरम मफूल है और मुजरिम जो है ये क्या है? इसम फाइल है। अच्छा, वो मैं बता रहा था कि उन्होंने रिकॉर्डिंग किया कि अरबी ग्रामर और अरबी लैंग्वेज, अरबी ये कितनी जरूरी है। तो उन्होंने अइम्मा के अकवाल बताए कि फलां फलां अइम्मा कहते हैं कि बंदे पर अरबी को समझना फर्ज है, अरबी को समझना फर्ज है। और दूसरी बात ये कि अगर अरबी नहीं, आपको अरबी नहीं आती, अरबी नहीं आती, अब देखें ना, ये तो हमारा लबो लाजा है, बाद औक़ात समझने के बावजूद गलती हो जाती है। लेकिन जिनको अरबी नहीं आती वो इतनी गलतियां करते हैं, इतनी गलतियां करते हैं कि आप उनका शुमार भी नहीं कर सकते। अभी आप देख लेना, यानी आपके हर लफ्ज में मैं बताता हूँ कि ये लफ्ज ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। तो अब ये हमारी जो बहस है वो ये है कि हमने देखना है कि एक लफ्ज अरबी में ये पढ़ा जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये था, हकीकत में ये था। ये से ये बना, ये से ये बना, और ये से ये किस कायदे और किस उसूल के तहत बना? किस कायदे और किस असूल के तहत बना? तो इंशाअल्लाह अब हमने ये पढ़ना है। अब देखें, पहले है सबक नंबर 21 महमूज के कायदे। किसके कायदे? यानी यहाँ पे वो अल्फाज यूज होंगे, वो अल्फाज जो महमूज हैं, जो क्या है? यानी जिनमें हमजा है, जिनमें क्या है? हमजा है। फिर हमजा की वजह से जो तब्दीली होगी, और एक बात ज़हन में रखनी है, ये तब्दीली की 2 सूरतें होंगी, या तो जायज़ होगी या वाजिब होगी।
या क्या होगी, वाजिब होगी। जायज का मतलब ये है कि आप तब्दीली कर लो तो भी जायज है, ना करो तो भी जायज है। और वाजिब का मतलब है कि आपने तब्दीली करके ही पढ़ना है, दूसरी तरह पढ़ सकते नहीं। अच्छा, आज के सबक की आखिरी बात और फिर आज का सबक मैं मुकम्मल करता हूँ, वो ये है कि एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि 3 हरकत हैं। कितनी हरकत हैं? ज़बर, ज़ेर और पेश। कितनी हरकत हैं जी? कौन कौन सी? ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर का भाई है अलिफ, ज़बर का भाई है, और ज़ेर का है या, और पेश का है वाव। ज़बर के मुनासिब हर्फ इल्लत क्या है? बोलो, ज़बर के मुनासिब क्या है? इसीलिए आप देखेंगे जहां भी अलिफ आएगा, अलिफ से पहले हमेशा क्या होगी? ज़बर। और ज़ेर का के मुनासिब कौन सा हर्फ इल्लत है? इसीलिए आप देखेंगे जब जहां भी या होगी, अमूमन या से पहले ज़ेर होगी। अमूमन या से पहले क्या होगी? जैसे सा के नीन, सा के या से पहले क्या है? बी, बी आ, बी या से पहले क्या है? हाँ। और पेश के मुनासिब है वाओ। पेश के मुनासिब क्या है? पेश के मुनासिब क्या है? इसीलिए आप जब भी देखेंगे कि ऊला, यानी जहां भी वाव होगी, वाव से पहले अमूमन क्या होती है? पेश। अमूमन क्या होती है? अब कल इंशाल्लाह हम ये कायदे पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे ये, और आप जो है वो एक नए सिलसिले में शुरू हो जाएंगे। और साथ साथ चूंकि हमारे तकरीबन हमने ये शुरू किया था जून में। कब शुरू किया था? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अक्टूबर और यानी हमारे पास सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। कितने महीने रह गए हैं? चलो 1 महीना दिसंबर का भी आप लगा लो मिसाल के तौर पर। चलो हमने दरमियान में इतनी छुट्टियां की तो चलो 1 महीना एक्स्ट्रा मैं पढ़ा दूंगा, तो दिसंबर तक। अब हम रोजाना पीछे से क्या करेंगे? थोड़ी थोड़ी रवियन, दोहराई, थोड़ी थोड़ी क्या करेंगे? अच्छा, मैं कल आपसे सुनूंगा अलामात इसम, अलामात फेल और अलामात हरफ। यानी कल का आपका जो सबक है वो है अलामात इसम, अलामात फेल और अलामात हरफ, और साथ ही इसम, फेल और हरफ की तारीफ। क्या जी? तारीफ। ये आपका पीछे से सबक है, और बाकी अगला सबक मैंने आपको आज पढ़ा दिया। आज मैंने आपको पढ़ा दिया। तो इस तरह ये इंशाल्लाह अब हम चलेंगे। आप लोग जो यहाँ मेरे पास बैठे हैं, अभी 12:15 हुए हैं, तो तकरीबन 25 मिनट बाकी हैं। 15 मिनट आप पीछे से दुराई करेंगे, आखिर में 10 मिनट आपको चले कमर सीधी करने के लिए मैं दे दूंगा। तो आखिर में आप 10 मिनट कमर सीधी कर लेना, फिर अजान हो जाएगी। ठीक है? आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ।